Okay, friends, shall we start the discussion? Yes. Yes. So I need technical help from Rutvik. So sorry for that delay. See, I have sent 2 notes today. One in the early morning that was about Adhikar Ved. So Mr. Krishna Kumar and Tushar Doctor have given a license that it can be taken as understood. Yes. Yeah. बहुत बढ़िया लिखा सर, बहुत एकदम, मतलब मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सर, बट मजा आ गया. Thank you, thank you. So, But sir, it cannot be taken as understood, sir. તમે સમજાવો ત્યારે જ સમજાશે. तो ऐसे करते हैं कि ये अधिकार भेद we will complete very briefly, and जो second topic है puzzles and confusions and frustrations and all kinds of things that arise, that we will discuss at little length. But Adhikar Ved I will start discussing, and if there is any query, then of course we will talk. So why I had taken up this subject is that in Gita, the most popular and at the same time most controversial slok is that second chapter 47th slok, which says Karmaneva Dhikaraste Ma Palesu Kadachan. Okay. And as we have discussed earlier, any person, any student of Gita, he will say, if I have only adhikar in karma and I have no right in karma phal, then I am not interested in doing karma also. Why should I do karma if I don't get the results? Okay. So that adhikar shabda, people take it as a matter of right. But Sanskrit language is such that a word can have many meanings, and even in fact, I would say whether Hindi, Gujarati or English language, in every language, one word can have more than 2 meanings, and for the same meaning, there can be more than few words. So philosophers or students of philosophy will always derive meaning from reference and context. It cannot be a straightforward simplistic meaning. Okay. So here, if we take reference and context of the principle of karma, then what Krishna Bhagavan is saying is, you have adhikar in doing whatever you want. Sorry. Okay. And in fact, let us say we ignore the childhood, but the moment a person becomes mature, starts understanding, then throughout his life, during the waking hours, he is always doing some karma or the other. Because as we have discussed earlier, karma includes thoughts, speech, as well as action. And here by karma, we don't mean karma kand. Karma kand is there in all the 4 Vedas. The initial part is karma kand, and we are completely ignoring karma kand. We are not into karma kand. By karma, what we mean is, as a gruhastha, we are running our own household. That also is the first and the most important karma. And then some people, friends, whoever is talking, can you please mute yourself? Trupti Ben, you have anything to add also, because that I'm trying to, that is getting unmuted, that is well. Okay. So actually, out of millions of gruhastha or householders, there are very few fortunate people who get beyond their own personal needs and their household needs. And they try to help others. Now, this is an additional positive karma. And if that karma is done with expertise, जो कृष्ण भगवान कहते हैं योगः कर्मेषु कौशल्यम, मतलब कुशल तरीके से, अच्छी तरह से, स्ट्रेटेजिकली, इंटेलिजेंटली अगर कर्म किया तो वो कर्म योग बन जाता है. और ऑफ कोर्स
3-4 कंडीशंस और है। तो कर्म, सिर्फ कर्म करना वो एक चीज है, कर्म के पीछे अपनी भावना जुड़े और वो कर्म अगर हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, निष्काम कर्म कर सकते हैं, तो वो कर्मयोग बनता है। द मोमेंट वी से निष्काम कर्मयोग, तो पैरेलल स्टेटमेंट या तो कनेक्टेड स्टेटमेंट आ जाता है कि तुम्हारा कर्म फल में कोई अधिकार नहीं है। अभी कर्म फल में अधिकार नहीं है कह दिया तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ही उड़ जाता है कि भाई ऐसे क्यों। तो ये खास ये एक सेकंड लाइन ऑफ द श्लोक वो समझाने के लिए ही मैंने ये अधिकार का इतना बड़ा नोट लिखा है कि द लॉ ऑफ कर्म इज सच कि हमने जो भी कर्म किए वो हर एक कर्म का कर्म फल तो मिलने ही वाला है, उसमें कोई सवाल ही नहीं कि कर्म फल ना मिले, मगर वो कर्म फल कैसे मिलेंगे, कभी मिलेंगे, क्या फॉर्म में मिलेंगे, वो हमें पता नहीं है। और इसके लिए मैं 2-3 इलस्ट्रेशन आज देता हूं, और दिस इज ए वेरी पर्सनल टॉक आई एम शेयरिंग विथ यू। आजकल के जो बच्चे होते हैं 10 साल की उम्र में तो बहुत होशियार हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं। और मेरे पिताजी कहते थे ऐसे, मुझे 22 साल तक तो अकल नहीं आई थी, मैच्योरिटी नहीं आई थी। वो बोलते थे तू कभी मैच्योर बनेगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ, अभी मैं जब 16-17 साल का था और कॉलेज जाता था, तभी गुजराती नवल कथा वगैरह पढ़ने का शौक था। तो वो पढ़ के मेरे दिमाग में एक बैठ गया था कि जो भी स्त्री प्रोस्टिट्यूट बनती है वो उनकी लाचारी के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, पैसे की कमी के कारण होना पड़ता है। तभी वो सिडनाम कॉलेज में मैं पढ़ता था, सिडनाम कॉलेज से इरोस टॉकीज में गया था एक कोई फिल्म की टिकट बुक करने को। तो वो इरोस टॉकीज के जो सीडी के ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट खड़ी थी। वो मेरे मगज में इतना आक्रोश हो गया कि एक लड़की को क्यों प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ता है, इतना कौन सा फ्रस्ट्रेशन है, अपनी सोसाइटी कैसी है। और सच मानो मैं घर पे आके 3-4 घंटा मेरा धुंधला हुआ स्वभाव रहा, और कुछ गुस्सा मैंने घर पे भी निकाला, घर के लोगों के साथ झगड़ा हो गया, कोई बगैर वजह के, क्योंकि मेरे दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन था। और तभी से मेरे दिमाग में था कि मुझे प्रोस्टिट्यूट्स को मदद करनी है। अच्छा, वो दिमाग में जो था, फिर तो बीकॉम पढ़ने में पड़ गया, फिर सीए पढ़ने में, फिर सीए प्रैक्टिस में, वो एक जो इरादा था वो कहीं छुप गया, मैं खुद भूल भी गया। फिर एट द एज ऑफ माय 60 ईयर्स, 60 साल की उम्र में मुझे मित्तल पटेल मिली। और मतलब 60 साल के पहले ही मैंने तो ये सोशल वर्क शुरू कर दिया था, उसे आप कर्मयोग कहो जो भी कहो, वो शुरू हो गया था और प्रोबेबली अच्छा भी हुआ था। फिर मित्तल पटेल मिली, और मित्तल पटेल का काम देखने के लिए मैं उसके कहा था, क्योंकि पहले दिन हम जब मिले उसको आगे से मैंने बोल के रखा था, तुम्हारा काम मुझे बताओ, तभी मुझे पता चलेगा तुम्हारा काम अच्छा है नहीं है। और हम फ्रेंड्स ऑफ धर्मपुर तभी ऑलरेडी था, तो हम आपको मदद कर सकते हैं कि नहीं। मित्तल पहले ही समय, पहली मीटिंग में सीधी मुझे वाडिया विलेज लेके गई। तो हम लोगों में से जो ये चैरिटी का काम में जुड़े हुए उनको पता है, जो नए लोग आए जिनको पता नहीं है उनके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ब्रीफली बताता हूँ कि प्रोस्टिट्यूट्स का फ्रस्ट्रेशन, उसके ऊपर जो जुल्म होते हैं, उसकी जो एक एक्सट्रीम इलस्ट्रेशन होएगा तो वो वाडिया विलेज था। वो विलेज में करीब 100% लेडीज देवर प्रोस्टिट्यूट्स, और छोटी छोटी बच्चियां 10 साल की उम्र में देवर पुश्ड इनटू प्रोस्टिट्यूट्स। फिर हम लोग ने मित्तल के साथ में काम शुरू किया, और हकीकत में 2010 में, सितंबर 2010 में मैं मित्तल को मिला। पहली बार हम वाडिया गए, और वो जगह, वो विलेज ऐसा था कि हमारे जैसे सज्जन तो उसके लिए बोलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो उसका नाम खराब हो जाएगा। क्यों, तुम वाडिया को कैसे पहचानते हो, ऐसा सवाल होगा। हम उधर गए, देयर वॉज ए रूल ऑफ टेरर। वहां जो दलाल था, जो हेड दलाल था,
वो किसी का खून भी कर देवे तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और जब मैंने काम उधर शुरू किया, मैं तो मित्तल को मदद कर रहा था, मित्तल ही सब काम कर रही थी और आज भी कर रही है। वो हमारे काम शुरू होने के बाद में दलाल ने किसी आदमी को गांव में जिंदा जला दिया, क्योंकि उसने कुछ ओपोजिशन किया था दलाल का, उसको जला दिया और वो दलाल का बाल बांका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसी जगह में हम लोग पहुंचे, हमने काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो वो समय पे मुझे वापस मेरा कॉलेज का समय याद आ गया कि हाँ, मेरे दिल में ये एक इच्छा थी जो दब गई थी, और आज ईश्वर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है फिर से कि जो मैंने, इसको इच्छा बोलो, वासना बोलो, कामना बोलो, जो भी संस्कृत शब्द यूज करो या जो भी अंग्रेजी शब्द यूज करो, ईश्वर के कृपा से वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। हमने काम शुरू किया और दोस्तों, मुझे आज बहुत आनंद होता है। रमेश भाई वगैरह को तो पता है, कृष्ण कुमार जी को पता है, वहां से 60% लेडीज आज की तारीख में प्रोस्टिट्यूट नहीं है। मोर देन 70% गर्ल्स आज मित्तल की हॉस्टल में पढ़ रही है। ऑफकोर्स ये कोविड कोरोना लॉकडाउन के कारण अभी नहीं पढ़ रही है, मगर वी आर एश्योर्ड कि ये लोग सब बच्चियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और वहाँ एक हेड दलाल था, दूसरे 2 दलाल थे। वो हेड दलाल ने मित्तल को भयंकर थ्रेट दी थी कि उसको ये कर देगी, वो कर देगा। वो दलाल ने मित्तल से माफी मांगी। आज की तारीख में वाडिया गांव में टेरर का रूल नहीं है। अच्छा, हमारी, थैंक यू रमेश भाई। हकीकत में वहाँ जब मैं गया था पहली बार, तो उनको सरकार ने करीब 200 एकड़ जमीन गिफ्ट दी थी कि आप लोग यहाँ खेती करो, उसमें कमाई करो, तो फिर यह प्रोस्टिट्यूशन की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो पहली बार मैं गया तो वो 200 एकड़ जमीन बंजर पड़ी थी, कोई भी खेती नहीं कर रहा था। फिर हमने कुछ छोटा सा वाटर मैनेजमेंट किया और आज दोस्तों करीब 200 एकड़ में से 175 एकड़ में खेती हो रही है। और मित्तल ने अलग अलग वोकेशनल मदद की, उनको लोन दी, स्मॉल स्केल लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह करके आज बहुत सारे लोग अपनी अपनी कमाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक बार अपनी कमाई शुरू की, प्रोस्टिट्यूशन में से बाहर आ गए, उसके बाद में उनको शर्म आती थी कि हम वाडिया में रह रहे हैं। तो 40-50 कुटुंबों ने वाडिया गांव छोड़ दिया और किधर जाके रहते हैं, और उनको भी अच्छी तरह से मित्तल ने मदद की है। तो मित्तल की एक जो कला है, उसकी जो खूबियां है कि वो इंसान की जो भी वीकनेस होती है, जो भी तकलीफें होती है, वो सब बराबर पहचान लेती है और उनको जहां जैसी जरूरत होगी ऐसी मदद करती है। और एक बहुत बढ़िया सक्सेस हो गई मेरे हिसाब से। आप 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाओ, उससे ज्यादा अच्छा है कि 10 स्त्री को प्रोस्टिट्यूशन के जुल्म से बचा लो, क्योंकि वो नर्क है। और मैं ऐसी लड़कियों को मिला हूं जिन्होंने नरक की यातना वाडिया में सहन किया है। अभी मैं इसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर सब्जेक्ट, ये सवाल है कर्म फल। मैंने इच्छा की थी, वो मेरा कर्म था। वो कर्म का फल मुझे करीब 40 साल के बाद में मिला। और कैसे मिला? इतना अच्छा मिला कि जो मेरी इच्छा थी उससे बहुत ज्यादा अच्छा मिला, और बहुत सारी स्त्रियों को मदद मिली। और जो बच्चियों को आज पढ़ा रहे हैं, वो तो उनका बहुत तक चलेगा, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। अच्छा, कर्म करने का अधिकार मुझे है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को है, सबसे वीकेस्ट आदमी को भी है। जो मैंने इलस्ट्रेशन लिखा है कि एक बूढ़ी औरत है, उसके शरीर में शक्ति नहीं है, हाँ, मगर वो विचार तो कर सकती है, विचार तो हर एक इंसान कर सकता है। और विचार करके किसी को अगर आशीर्वाद देती है तो ये एक उसका पॉजिटिव कर्म हो गया। और वो पॉजिटिव कर्म का कर्मफल उसे जरूर मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, अपने को पता नहीं है। और जो कर्म का सिद्धांत में समझाया है, हमने आगे भी बातचीत की है, तो अभी मैं खाली ब्रीफली बोलूंगा कि हम अभी जो कर्म कर रहे हैं
उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं कि अभी हम कर्म कर रहे हैं। वो कर्म हो गया, वो हमारा संचित कर्म हो गया। वो संचित कर्म का कर्म फल आज मिलेगा, 40 साल के बाद मिलेगा, 10 जन्म के बाद में मिलेगा, कभी मिलेगा किसी को पता नहीं है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है मतलब क्या? यू आर सर्टनली एंटाइटल्ड टू कर्म फल, इनफैक्ट यू विल गेट कर्म फल, मगर उसके ऊपर उसका एंटिसिपेशन करने का, एक्सपेक्टेशन करने का, कैसे किस फॉर्म में मिलेगा, वो किसी को पता नहीं है। इसके लिए अधिकार शब्द भगवान ने वहां यूज किया है। ये अधिकार के दूसरे भी 2-3 मीनिंग है। मैंने जैसे ब्रीफली कहा है कि एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है। अभी समझो हमारे कृष्ण कुमार जी इज मोस्ट ब्रिलियंट सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मगर वो डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस में जाके सुन सकते हैं, सुनने का अधिकार है, वहां जाके चर्चा करने का अधिकार उन्हें नहीं है। इसी तरह से अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ऐसे कोई भी व्यक्ति आवे, वो बच्चा है, समझो मैंने एक इलस्ट्रेशन ये दिया है कि एक स्टूडेंट है, 10वीं स्टैंडर्ड पास हुआ है, मान लो वो इतना इंटेलिजेंट है कि यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया, फिर भी उसे अधिकार नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सभा में वो चर्चा करे। यहाँ अधिकार का मतलब राइट नहीं है, यहाँ अधिकार का मतलब कॉम्पिटेंस है। तो भगवान हमें कह रहे हैं तुम्हें कर्म करने की कॉम्पिटेंस है। जैसे निर्बल से निर्बल है, गरीब से गरीब है, उसे भी आशीर्वाद देने का तो अधिकार है ही। लोग, कम लोग आशीर्वाद देते हैं, ज्यादा लोग तिरस्कार करते हैं, क्रोध करते हैं। जो भी करते हैं वो कर्म तो हो ही रहा है। कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल का अधिकार नहीं है। उसी के साथ में स्टेटमेंट है कि भगवान भी अगर मनुष्य अवतार लेते हैं, महावीर भगवान होवे, राम भगवान होवे, कृष्ण भगवान होवे, कोई भी होवे, उन्होंने जो भी कर्म किया है, जब तक वो कर्म का फल नहीं भोग लेंगे, तब तक कर्म की निर्जरा नहीं होगी। कर्म की निर्जरा नहीं होगी तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो मित्रों, ये है मतलब अधिकार शब्द का। और ये शब्द अगर हमने समझ लिया तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक को समझने का सरल हो जाता है, फिर इसके सामने हमें कोई विरोध नहीं रहता है। तो आई थिंक वी विल क्लोज द डिस्कशन ऑन द वर्ड अधिकार हियर। अभी इसमें किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ डिस्कशन करना है तो हम कर लेवे, नहीं तो हम आगे चले। ओके, आगे चलिए। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रणब, एक मिनिट है। हाँ जयंत भाई, बोलो बोलो। एक क्वेरी है कि ऐसी कर्म क्वेरी है कि कर्म का अधिकार की जगह पे कर्म इज बाय डिफॉल्ट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अधिकार, it is by default. Every moment you are building karma, whether you want or whether you don't want. Is it can be interpreted in that way? Let us elaborate that statement. ये statement का हम जरा विस्तार करें। See, जैसे हमने कहा कि सोचना, बोलना वो भी कर्म है, तो वो तो होते ही रहता है, क्योंकि आदमी विचार बंद नहीं कर सकता है। विचार तो आप चाहो ना चाहो होते ही रहता है। मगर हमने एक अगली मीटिंग में आगे और भी चर्चा की थी, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जो खाया उसका वो पाचन हो रहा है, ये भी सब कर्म है, मगर उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई कर्म बंधन नहीं है। अच्छा, हमने कुछ काम किया, यहाँ से मैं उठ के ऑफिस गया, ऑफिस से मैं घर में आया, घर पे आया, वो भी कर्म हुए। ये सब कर्म का कोई मायने नहीं रखता है। इस कर्म के पीछे हमारे एक्सपेक्टेशन है, वो हमें बांधने वाला कर्म होता है। यहाँ हमारा चॉइस आ गया, हमारा कॉन्शियस चॉइस आ गया, मैंने कुछ कर्म किया, मैं आशा रखता हूँ, चलो मैंने आप लोगों से चर्चा की, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों में से ज्यादा लोग मित्तल को 11,000 रुपया भेजेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन हुआ, मेरा कर्म बंधन हो ही गया। अगर मैं निष्काम कर्म करता हूँ, भाई मैं जो यहाँ आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, आप सीखेंगे, मैं सीखूंगा, हम दोनों सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे, बात पूरी हो गई। अगर निष्काम कर्म हुआ तो उसमें कर्म बंधन नहीं है।
और बराबर। इसी के लिए जब हमारी अगली मीटिंग में बात हुई थी कि बीइंग अवेयर, हाँ, आर वी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग? या मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट इवन अवेयर व्हाट दे आर डूइंग। अगर ऑफिस में किसी को झाड़ दिया तो एकदम झाड़ दिया, उसने बेचारे ने छोटी सी भूल की, हमने आधा घंटा लेक्चर दे दिया। तो उसका मतलब है कि हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, then we are bound by those karma. The moment we are aware of what we are doing, further we are aware of karma bandhan, तो हम सोच समझ के कर्म करेंगे, वो ही कर्म हमें बांधने वाला है। बाकी जो सोने का, उठने का, रूटीन का कुछ उसका मीनिंग नहीं है कुछ उसका मतलब। करेक्ट। यस सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम आगे चलते हैं। अधिकार शब्द अब पूरा हो गया, आगे चलते हैं। और इसमें क्या है कि कृष्ण कुमार जी, मैं थोड़ा विंडो की तरफ हो गया। नहीं, अभी एकदम चमक रहे हैं सर, अभी एकदम। धर्मेंद्र भाई यही बोल रहे थे शुरू में। ओके, ग्रेट सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, जब आदमी, इंसान धर्म का अभ्यास करने शुरू करता है तो पहले पहले तो ये जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते ऐसा श्लोक है तो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसे लगता है अरे यार, इतने बड़े बड़े साधुओं ने कहा, कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले कहा, वो बात छोड़ दो। मगर आज रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, संत तुकाराम सभी यही बात कर रहे हैं। तो ये बात के पीछे कुछ होना चाहिए, रहस्य। तो वो रहस्य ढूंढने लगता है। तो अगर वो 5 साधु की बात सुनी तो उसमें से 6 मीनिंग निकलते हैं कम से कम। तो हर एक साधु अलग अलग बोलता है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि ये सब क्या बात है, इसका सॉल्यूशन क्या है। यार मुझे एक जवाब चाहिए। अगर आप 5 साधु मुझे 6, 7, 8 बातें बताते रहेंगे तो फिर आई एम बैक टू स्क्वायर वन। तो ये बैक टू स्क्वायर वन को अगर हम निकाल देना है, हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। तो वो सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए मैंने कुछ अलग अलग तरीके से सेम विचार रखा है। सेम विचार अलग अलग तरह से रखा है। जो विचार मैंने पहले बोला है कि एक तो अनेकांतवाद है, अलग अलग लोग अलग अलग बात करेंगे। दूसरा निश्चय नय और व्यवहार नय है। और अपने इंडिया में समझो 100 साधु है तो उसमें से 10 साधु को व्यवहार नय और निश्चय नय का पता है, 90 साधु को तो इसका पता भी नहीं है, और वो दोनों मिक्सअप करते रहते हैं। अगर जब मिक्सअप हो गया तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। तो निश्चय नय, व्यवहार नय, अनेकांतवाद, भाई अद्वैत की बात कर रहे हैं कि अद्वैत का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ही चैतन्य है, एक ही ईश्वर है, जो भी शब्द हम यूज करें। तो फिर इतना अनेकांतवाद क्यों है? ये लॉजिकल दिमाग में बैठता नहीं है। तो उसका एक रिकंसिलिएशन होना चाहिए। ये बात भी हमने आगे कर ली है, तो आज मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। मगर वो बात करने के बजाय भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। मैं रामकृष्ण परमहंस को मानूं, चिन्मयानंद मिशन को मानूं, किसको मानूं? क्योंकि चिन्मयानंद भी कुछ अलग बोलते हैं, रमण महर्षि भी कुछ अलग बोलते हैं। तो ये सबका कुछ सॉल्यूशन ऑफर मैं आज कर रहा हूँ, वो अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ। ये जरा डिस्कस करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में या तो इंडियन फिलोसॉफी में जो धर्म से लेके वेदांत तक की फिलोसॉफी है, उनका एक कहना है। फिर गोपीनाथ कविराज जैसे जो लोग परलोक की बात करते हैं, वो एक कुछ एडिशनल बात करते हैं। आप अगर रामायण महाभारत पढ़ा, उसमें बहुत सारी फिलोसॉफी आ जाती है। सिमिलरली अगर जैन आगम पढ़े या बुद्ध धर्म ग्रंथ पढ़े, उसमें बहुत सारी फिलोसॉफी आ जाती है। मगर वो सब फिलोसॉफी मेरे जन्म से लेके मरण तक की है। मेरे मरण के बाद में क्या होगा? जन्म से लेके मरण तक आलोक है, मतलब यह लोक है। परलोक में क्या होता है, ये रामायण महाभारत में चर्चा नहीं हुई है, बहुत कुछ छोटा सा लिखा हुआ है। और वेदांत मतलब उपनिषद में क्या लिखा है, वो सीधा कंक्लूजन दे दिया है, भाई तुम ब्रह्म हो, तत्त्वम असि।
वो कंक्लूजन देने से दिमाग में कुछ नहीं बैठता है। एक तो पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं ईश्वर हूँ, तो ये कैसी बात हो रही है, इट्स इम्पॉसिबल बात। अगर मैं ईश्वर होता तो पूरी दुनिया में से कोरोना वायरस वाइप आउट हो जाता था, मगर नहीं हो रहा है ना। और वो दुनिया की बात छोड़ो, मेरे खुद के जो एक्सपेक्टेशन है वो कहाँ पूरे हो रहे हैं। तो ये बातें लोगों के दिमाग में नहीं बैठती है कि ये हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वो साधु लोग बातें करते रहे, जो बातें का कोई निष्कर्ष नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं आता, ऐसी बात में मुझे रस नहीं है। यहां से ओके, तो मैं जो कह रहा हूं कि रामायण महाभारत उसका एक स्कोप है डिस्कशन का, उसके बाद में वेदांत का तो अल्टीमेट है, मगर वो महाभारत का स्कोप और वेदांत के बीच में बहुत बड़ा गैप है। वो गैप में कन्वर्सेशन विद गॉड सीरीज में नील डोनाल्ड वॉल्स ने कुछ आगे समझाया है। उससे आगे है अभी डॉक्टर गोपीनाथ कविराज का, तो मैंने अभी अभी पढ़ा, ये ही साल में पढ़ने का शुरू किया। ऐसे तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लिखा होगा, मुझे पता भी नहीं है, मगर अभी मैं पढ़ने का शुरू किया है। जैसे पढ़ लूंगा आपसे डिस्कस भी करते रहेंगे। अभी ये सभी का रामायण महाभारत वेदांत कन्वर्सेशन विद गॉड गोपीनाथ, ये सब का जो कहा है वो मैंने एक समरी बना के सेकंड पेज पे दी हुई है कि ये क्या है। वो आपको नोट मैंने करीब 5 बजे या 4:30 बजे भेजी है, तो आप पढ़ नहीं सके होंगे, और पढ़ेंगे तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैंने खाली लिस्ट भेजा है। जो सुबह में मैंने भेजा था इट वॉज ए डिस्कशन, अधिकार भेद। अभी जो भेजा है वो खाली नोट है, लिस्ट है, तो मैं अभी ये लिस्ट को इलाबरेट करता हूँ। अपने धर्म में ये कहा है कि ब्रह्मन वो हर हमेशा है, उसका न जन्म हुआ है, उसका न मृत्यु होने वाला है। कोई भी ऐसा समय नहीं था जब भी ब्रह्मन नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं आएगा जब वो नहीं रहेगा। ओके, वो ही ब्रह्मन को हम चैतन्य भी कहते हैं, और संस्कृत में उसके सत्य चित्त आनंद, ये 3 एस्पेक्ट उसके बताए हैं। तो ब्रह्मन खुद सत्य है, ब्रह्मन खुद कॉन्शियसनेस है, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस है, और ब्रह्मन खुद आनंद है। आप आनंदी हो ऐसा कहूं तो विशेषण बन गया, मगर ब्रह्मन के लिए विशेषण की जरूरत नहीं है। ब्रह्मन खुद आनंद ही आनंद है, ब्रह्मन खुद ज्ञान ही ज्ञान है, ब्रह्मन खुद प्रेम ही प्रेम है। ये जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हम सोच सकते हैं वो सभी क्वालिटीज ब्रह्मन खुद है। वो ब्रह्मन एक ही ब्रह्मन है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो ब्रह्मन को अगर कुछ सूचा, जिसे हम हरि लीला बोलते हैं, कृष्ण लीला बोलते हैं, उसे लीला करने की इच्छा हुई। जब लीला करने की इच्छा हुई तो इसके लिए उपनिषद में एक स्टेटमेंट है, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक ही हूँ, ब्रह्मन मैं एक ही हूँ, मुझे बहु मतलब ज्यादा होना है। तो ज्यादा कितना, जब ब्रह्मन की तो कैपेसिटी उसकी क्या है, ओमनीपोटेंट है, उसने सोचा कि मैं बहुत बनूं तो इन्फिनाइट हो गया सीधा। तो सेकंड स्टेप है एको हम बहुश्यामी। जब कृष्ण लीला शुरू हुई, या तो हरि लीला बोलो या कुछ भी आप बोलो, क्योंकि जो हिंदू नहीं है उसे कृष्ण लीला से शायद ऑब्जेक्शन भी होवे। अब संसार की शुरुआत हुई, वो कैसे होती है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा शब्द आता है अहंकार। ये अहंकार शब्द भी कंफ्यूजन कॉज करता है। अहंकार का मतलब है, ये भी हमने चर्चा की हुई आगे, तो अभी मैं ब्रीफली खाली बताऊंगा। अहम, अहम अस्मि मतलब कि मैं हूं, ये मैं हूं की जो भावना होती है उसे अहंकार कहते हैं। दिस अहंकार इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड ईगो। ईगो को भी हम गुजराती हिंदी में ट्रांसलेशन तो अहंकार ही करते हैं, मगर वो अहंकार का शब्द का अर्थ है कि मैं दूसरे से अच्छा हूं, मैं दूसरे से धनी हूं, मजबूत हूं, ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। ऐसी जो कंपैरिजन की बात आती है वो अहंकार नेगेटिव है। मगर ये पॉजिटिव अहंकार इस तरह से है कि जब मैं हूं, ये आप सोचो तभी तो संसार की शुरुआत होती है। ये कैसे, तो ये अहंकार शब्द का ऐसे ही ब्रह्मन से अहंकार हुआ, और
एक जीवात्मा हुआ या तो अनंत जीवात्मा हुए, वो समझाने के लिए सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन ये है कि एनालॉजी है कि ब्रह्मांड को आप अनंत सागर तरफ से सोचो। हिंदू धर्म में उसके लिए क्षीर सागर शब्द यूज किया है। एक अनंत सागर है, वो अनंत सागर इतना बड़ा सागर है कि उसमें बिंदु कितने होंगे कोई गिन नहीं सकता है, क्योंकि जब सागर की ही कोई बाउंड्री नहीं है, न बॉटम है, न टॉप है, न साइड्स है, वो तो अनंत है, तो उसके अंदर बिंदु गिनो तो कितने होंगे। जब अनंत सागर में बिंदुओं ने सोचा कि मैं बिंदु हूं, तो उसे एक भावना हुई, वो भावना को बोलते हैं अहंकार। अगर अनंत बिंदुओं ने सोचा कि हम अलग अलग है, तब वो अनंत जीवात्मा हुए। वो जीवात्मा पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों में ये कहा है, हम जो इंसान है उसे पंचेंद्रिय बोलते हैं, मगर बाकी सब में जीव है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसमें चैतन्य नहीं है। चैतन्य के बगैर कोई चीज रह नहीं सकती है। तो पृथ्वी में भी जीव है। हिंदू धर्म में उसे पृथ्वी माता कहा है, धरती माता कहा है। वायु में भी जीव है, वायु देवता कहते हैं। अग्नि में भी जीव है, हम अग्नि देवता कहते हैं। तो इस तरह से जितने भी, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, जड़ कहते हैं, वो हर एक में जीव है। जैन धर्म के हिसाब से वो एकेंद्रिय है। एकेंद्रिय मतलब उन्हें एक ही इंद्रिय है कि मैं हूं, बस उतना ही पता है। उससे आगे उन्हें कोई संज्ञा नहीं है, मतलब उसे न दुख है न आनंद है। उसे काटो, एक पत्थर को आप तोड़ दो तो उसे कोई पीड़ा नहीं होती है, तो वो पीड़ा की संज्ञा ही नहीं है, इसीलिए उसे एकेंद्रिय कहते हैं। जयंत भाई और मीना बेन, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप जरा मुझे बताना, क्योंकि आप दोनों जैन धर्म में एक्सपर्ट है। नहीं सर, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली हाँ जी, बोलो बोलो। एकेंद्रिय जीव, हाँ एकेंद्रिय जीव में हाँ, उनको खाली स्पर्श का अनुभव ही है। 5 अच्छा, इंद्रियों में से खाली स्पर्श का ही अनुभव है बस, ओके, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ उसके हाँ, ठीक है। जैन भाई, मैंने ये सुना है एकेंद्रीय में जैसे जो एंट होती है, चींटी, नहीं। हाँ चींटी हाँ मूंगी बोलते हैं ना सर उसको, हाँ 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 हाँ, हाँ, उसमें बराबर। खाली स्मेल का पावर होता है, मतलब वो खाली स्मेल के बेसिस के ऊपर वो अपना पूरा जीवन चलाती है, उसको खाली एक शक्ति होती नहीं, बट एक मीन्स एंड जो है ना, वो एकेंद्रिय में नहीं आती है, एकेंद्रिय में नहीं है। है। अच्छा, एकेंद्रीय में नहीं आती है। हाँ नहीं है, अरे वो सी उनसे दो इंद्रिय में आएंगी, नहीं साहब, बे चींटी इंद्रिय में। को भी भूख लगेगी। हाँ, हाँ भूख चींटी को लगेगी। अगर कोई मारने को जाएगा, अगर उसे समझ में आएगा, हाँ, वो इंसान उसको मारने को जाएगा तो उसको बेचारी को दिखेगा भी नहीं, मगर सामने समझो उससे बड़ी चींटी आ गई या दूसरा ऐसा जंतु आया जो चींटी को खाने को जा रहा है, तो चींटी भागेगी। तो उसे जीव बचाने का प्रयत्न करना है। ओके। तो वो अलग है, वो एकेंद्रिय में नहीं आएगी। अच्छा, ओके सर। और जो फीमेल एंट है और जो मेल एंट है, जो उसका जो मेटिंग होता है वगैरह सब कुछ होता है, तो उसमें बहुत सारी इंद्रियां है। ओके। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे अहंकार शब्द की। अहम हुआ, वहीं से संसार की शुरुआत हुई। जब अहंकार ही नहीं है तो संसार खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी पूरे संसार की बात छोड़ दो, हम एक इंसान की बात करें, तो साधु लोग बोलते हैं आप अपने अहंकार को मिटा दो, उसका सर्वनाश कर दो। जब अहंकार जीरो हो जाएगा, अहंकार का जीरो होना मतलब क्या, कि आपकी नम्रता इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि आपको किसी ईगो का तो सवाल ही नहीं है, बाकी और भी कुछ कोई सवाल ही नहीं है। जैसे ईश्वर ने जो चाहा, जैसे मीराबाई ने कहा, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। जो भी परिस्थिति में है वो परिस्थिति में रह रहे हैं, हमें ना कोई इच्छा है ना कोई कामना है। अभी हम तो गृहस्थ है, हमें तो ये सब सोचना बहुत मुश्किल लगता है, क्यों कामना नहीं है, हमारी कामनाएं बहुत है। ठीक है, तो जिस इंसान को कोई भी कामना ना रहे, तभी बोलते हैं उसके उसका अहंकार शून्य हो गया। जब अहंकार शून्य हो गया, तब उसके आगे जाने का मतलब मोक्ष का रास्ता खुल गया। क्योंकि अहंकार नहीं है तो वो तो फिर ब्रह्मन नहीं हो गया।
और कोई रास्ता ही नहीं है। अहंकार नहीं है तो कोई नरक में न जाने वाला है, न स्वर्ग में जाने वाला है, वो सीधा ब्राह्मण होना है। मगर ये प्रोसेस क्विक नहीं है, प्रोसेस लंबी है, तभी आलोक परलोक सब होता है। और इन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से परलोक भी अपना, मनुष्य का जिंदगी तो 70 साल से 100 साल तक गिनो, मगर परलोक में तो मतलब और बहुत लंबा समय हो सकता है। ठीक है। अहंकार, अहंकार से दुनिया शुरू हुई, अहंकार से जीवात्मा शुरू हुआ, अहंकार का नाश से जीवात्मा का मोक्ष होगा। मगर पूरा संसार का अहंकार मिट जावे वो बात यहाँ हम नहीं कर रहे, आगे आती है, यहाँ नहीं कर रहे। अच्छा, अहंकार, मन, बुद्धि और 10 प्राण, ये सब मिलके इंसान का अंतःकरण होता है। वो अंतःकरण के साथ हमारा फिजिकल बॉडी आवे तब हम उसे इंसान कहते हैं। जब तक फिजिकल बॉडी नहीं है तब तक अंतःकरण है, उसे आप जीवात्मा कह सकते हो, मगर वो इंसान नहीं है। वो इंसान का शरीर धारण करे, पशु पक्षी का शरीर धारण करे, तब वो उसकी एंटिटी बनती है। ये मेरी नोट में 3rd पॉइंट है। अभी ये चीज कुछ अलग तरीके से मैं वापस इलाबरेट कर रहा हूं कि ब्रह्मन को हमने कहा सत, चित्त और आनंद, और ब्रह्मन खुद ही जीवात्मा है। वो ब्रह्मन ही तृप्ति बहन है, ब्रह्मन ही धर्मेन भाई है। वो दूसरी तरह से कहो तो धर्मेन भाई खुद ब्रह्मन है, अभी इसी वक्त यहीं पर वो ब्रह्मन है। तो फिर ये निश्चय नय और व्यवहार नय की बात आ गई। अभी उसमें थोड़ी कंपैरिजन करते हैं कि ब्रह्मन मतलब सत, चित्त और आनंद। तो ब्रह्मन में जो सत है, सत मतलब होना, वो होना जीवात्मा में अहंकार हो गया। मैं हूं, वो मैं हूं मतलब वो सत्य का एक रूप है, मगर मैं अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मन होने के बजाय मैं रश्मिन संघवी हूं, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने अपने आप को संकोच लिया, अपने आप को एक कन्फाइंस में बाइंड कर दिया, वो अहंकार है। चित्त, चित्त शब्द जब हम ब्रह्मन के लिए यूज करते हैं तो उसका मतलब है कॉन्शियसनेस या तो नॉलेज। केवल ज्ञान हम जो बोलते हैं, केवल नॉलेज, ओनली नॉलेज, वो है चित्त। वही चित्त जब जीवात्मा का चित्त होता है तभी उसे हम मन बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। और माइंड का फंक्शन है डिजायर्स करने का, इच्छाएं करने का। और इच्छाएं कितनी? अनंत इच्छाएं, कभी एक इच्छा पूरी होती ही नहीं है। और उसके लिए महाभारत में ययाति राजा का बहुत सुंदर वार्ता है, लंबी वार्ता है तो इसके लिए मैं अभी करता नहीं हूँ। उसका कहना इतना ही है, समझो इच्छा अनंत है। हाँ, उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, ठीक है। तो गुलाब जामुन मैं 5 खाऊं, 10 खाऊं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, उससे ज्यादा मैं खा ही नहीं सकता हूँ। और किसी ने मुझे ऑफर किया तो मैं खाऊंगा भी नहीं। तो ये इच्छा अनंत कैसे हुई? यहाँ इच्छा अनंत होने का मतलब ये नहीं है कि एक कंटिन्यूटी रहती है। आज मैंने खा लिया, आज मेरा पेट भर गया, आज मुझे अभी 11वां गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं है, मगर 2 दिन के बाद में फिर इच्छा होगी। जो स्मोकर्स है, जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट बीड़ी कुछ भी स्मोक करते हैं, तो रोज उसको करना है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसके लिए कहते हैं कि इच्छाएं, कामनाएं, डिजायर्स अनंत है। अनंत का इस तरह से मतलब यहाँ विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मीनिंग ये होता है कि आप जब तक जिंदा रहो तब तक इच्छा रहेगी। आदमी बूढ़ा हो गया, उसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फिर भी गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं मरती है। वो अपने आप पर संयम करेगा, कंट्रोल करेगा, वो एक बात है, मगर उसको इच्छा तो दिमाग में रहती ही है। ये ब्रह्मन है तो उसको चित्त है, जब जीवात्मा हो गया तो उसका मन हो गया। चित्त और मन, ये साधु लोग दोनों को एक ही अर्थ में यूज करते हैं, जैसे दोनों शब्द एक दूसरे के बराबर है। मगर मैं यहाँ डिस्टिंक्शन कर रहा हूँ कि ब्रह्मन है तो चित्त है, इंसान है, पशु पक्षी है, उन्हें इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को मन कहते हैं। फिर आनंद, तो ब्रह्मन का आनंद मतलब ब्लिस है। ब्लिस मतलब इट इज ए
सेल्फ जनरेटेड आनंद। हम आनंद करते हैं, तो मैं गुलाब जामुन खाया तो मुझे आनंद मिला, मैं पिक्चर देखने को गया तो मुझे आनंद मिला, मैं थर्ड पार्टी से मुझे आनंद मिल रहा है, थर्ड ऑब्जेक्ट से मुझे आनंद मिल रहा है। उसे एक्चुअली आनंद शब्द को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो मे बी हम कहें कि हम जीवात्मा की तरफ से जो हम भुगत रहे हैं उसे प्लेजर बोलो। वो प्लेजर इज ऑलवेज फाइनाइट। मैं जब तक गुलाब जामुन खाया मुझे आनंद आया, मैं पिक्चर देखने को गया, मैं 2 घंटा पिक्चर देखा, वो 2 घंटा मुझे आनंद रहा। ये भी मुमकिन है कि पिक्चर देखने के बाद में भी मुझे थोड़ा, जब भी याद आता है तो मुझे उसका सॉन्ग याद आता है, तो मुझे सॉन्ग अच्छा लगता है, मगर फिर भी वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। तो इच्छा पूर्ति हमेशा टेम्पररी रहती है और इच्छा हमेशा इन्फिनाइट रहती है, और इसका जो कन्फ्लिक्ट है वो अपने को दौड़ा रहा है। मन जो ठोस वस्तु नहीं है वो इंसान को दौड़ाती है। इंसान जो फिजिकल बॉडी है वो इंसान है कि हाथी है कि सिंह है, कोई भी उसे दौड़ा सकता है, इतना मन का पावर है। ओके, सत चित्त और आनंद, अहंकार, मन और प्लेजर्स, ये एक हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और आगे बढ़ता हूं कि जब ब्रह्मन ने सोचा एको अहम बहुश्यामी, तो ब्रह्मन ने सोचा तो उसके लिए तो समय का कोई सवाल ही नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड एक साथ में खड़े हो गए, और जो अनंत ब्रह्मांड खड़े हो गए वो संसार कहते हैं। वो इन्फिनाइट ब्रह्मांड में अनेक स्टार्स है, अनेक स्टार्स की सोलर सिस्टम्स है, वो सोलर सिस्टम के ऊपर एक एक ग्रह के ऊपर अनंत जीव है। तो कोई हम सोच भी नहीं सके, इतनी सारी चीजें हो गई। ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये आलोक है, परलोक है। वो परलोक के बारे में ज्यादा चर्चा रामायण महाभारत में नहीं है, योग वासिष्ठ में है, और ये दूसरी जो बुक्स है उसी में आता है। परलोक, उसका ये मतलब है कि एक इंसान मर गया, मर गया तो फिर क्या हुआ। मैंने तदात्मानंद जी की लिंक एक बार भेजी थी यूट्यूब में, तदात्मानंद जी ने समझाया है कि इंसान मरता है तभी क्या होता है, उसका खाली फिजिकल बॉडी रह जाता है, मगर उसका पूरा अंतःकरण टुगेदर विथ उसका संचित कर्म वो सब आगे जाते हैं। उसके संस्कार, संचित कर्म के कारण उसके संस्कार बनते हैं, वो संस्कार कर्म का समूह और उसका मन बुद्धि इच्छाएं वो सब आगे नेक्स्ट जन्म में उसे मिल सकती है। और इसी का कारण है कि आदि शंकराचार्य, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में तो उनको पूरा पूरा ज्ञान हो गया था, जो आज मुझे 70 साल में नहीं है वो उनको 11 साल की उम्र में हो गया। तो कैसे हुआ। जूनागढ़ की राधा मेहता है, अभी आज की तारीख में वो 23 साल की है, मगर उसकी 10 साल पहले की वीडियो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लड़की को इतना सब कैसे पता है। जो कॉम्प्लेक्स थियरी है फिलोसॉफी की, वो इस तरह से बोलती है जैसे वो बच्चे नर्सरी राइम्स बोलते हैं, इस तरह से बोलती है। तो ये भी सिंपल कारण है कि उसके अगले जन्म के संचित कर्म और संचित संस्कार उसे ये भाव में मिले हैं। उसके विरुद्ध कोई टेररिस्ट होता है, कोई बचपन से ही डैमेजिंग हार्मफुल क्रोधी होता है, वो भी उसके आगे अगले जन्म के संचित संस्कार है। अच्छा, एक इंसान ने अपना शरीर छोड़ा, शरीर का त्याग किया, फिर वो जीवात्मा तो रहता है विदाउट फिजिकल बॉडी। अगर वो साधु है तो ये गोपीनाथ जी उसके आगे की पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। कुछ इलस्ट्रेशन ऐसे भी दिए हैं कि एक साध्वी स्त्री थी, वो साध्वी स्त्री का मृत्यु हो गया, उसके बाद में दूसरे किसी साधु ने वो परलोक की विजिट की और उसने परलोक में देखा कि वो साध्वी स्त्री का पूरा फैमिली साथ में है। वो साध्वी स्त्री मर गई तो ऐसा नहीं कि उसका दूसरा फैमिली से वो बिछुड़ गई, नहीं, पूरा फैमिली साथ में है। और वो वहां भी फिलोसॉफी की चर्चा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं,
और वहां से भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सब परलोक की बातें हैं। अभी 99.9% लोग परलोक की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसका प्रूफ क्या है? हमें प्रत्यक्ष कुछ चाहिए, तो वो प्रत्यक्ष तो कोई बता नहीं सकता है, न कोई कह सकता है दावे से कि मैंने जाके देखा है। जिन साधुओं ने परलोक को देखा वो बोलते नहीं है। कोई, बहुत सारे साधुओं में से कोई साधु वो परलोक की बात करते हैं। और वो मेरी जो आध्यात्मिक अभ्यास की पूरी मुसाफिरी है, उसमें जब मैंने रामायण 5 बार पढ़ ली, महाभारत 10 बार पढ़ लिया, दूसरा कुछ पढ़ लिया, तब ये मेरी ये स्टेज आई है कि अनायास से, एक्सीडेंटली मुझे ये परलोक की पुस्तकें मिल गई और वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। यहाँ हम परलोक की बात ब्रीफली कर रहे हैं, साधुओं ने बहुत ज्यादा किया है। और ठीक है, तो एक इंसान, एक हाथी, एक हिरण मर गया, वो जीवात्मा आगे परलोक में अपने संचित कर्म से आगे चालू रहता है। जब वो परलोक में उसकी साधनाएं अच्छी होती है, तभी मोक्ष की बात है। और मोक्ष मतलब क्या? तो ये गोपीनाथ जी ने एक 5-6 लाइन के पैराग्राफ में लिखा है कि जो जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया है, तो वो तो अभी चैतन्य के रूप से घूम रहा है, उसे शरीर नहीं है, मतलब, मगर एनर्जीज है। और एनर्जी भी एक नहीं, बहुत सारी एनर्जी का कलेक्शन है। मन एक एनर्जी है, बुद्धि एक दूसरी एनर्जी है, प्राण दूसरे 10 एनर्जियां है। ऐसे बहुत सारी एनर्जियों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ एनर्जीज इज स्टेइंग टुगेदर। जब उसकी साधना अंतिम तक पहुंचती है, जब उसका मोक्ष का समय होता है, तो वो एनर्जी तरंग की तरह, वेव्स की तरह जाके ब्रह्मन जो कंप्लीट चैतन्य है उसमें मिल जाती है। वो उनकी मोक्ष की कल्पना है। एक इंसान को उसकी लाइफ साइकिल जब पूरी होती है, उसे कहते हैं मोक्ष। मान लो पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन हो गया, हाँ, वो कभी होगा अपने को पता नहीं है, और एक्चुअली धर्मों में सब बताया हुआ है, उसके भी फिगर्स लिखे हैं कि इतने करोड़ या इतने ट्रिलियन ईयर्स के बाद में होगा। तो जब भी होगा उसे प्रलय कहते हैं, या तो दूसरा शब्द है कल्पांत। अभी कल्पांत का व्यवहारू मीनिंग बहुत छोटा सा मीनिंग होता है कि एक बच्चा रड़ रहा है, रो रहा है, बहुत जोरों से चीख रहा है, रो रहा है, उसे भी हम कल्पांत बोलते हैं, मगर वो गलत अर्थ है। संस्कृत में सही अर्थ है कल्प। कल्प मतलब एक ब्रह्मांड का शुरू होने से वो ब्रह्मांड का पूरा होने का समय, वो कल्प है। तो जब कल्प का अंत आता है तो उसे कल्पांत, ये संधि हुई। वो जब कल्पांत होता है तो समझो कि अगर हम ईश्वर कहें, ब्रह्मन कहें, तो वो अभी सो गए। और इस ये भी धर्म में जयंत भाई वुड बी नोइंग, मीना बेन वुड बी नोइंग कि उसके लिए समय दिया है कि ब्रह्मा की एक रात, ब्रह्मा का एक दिन, मतलब इंसान के कितने करोड़ साल, ये सब दिया हुआ है। मगर मैं यहाँ अहंकार से, ब्रह्मांड की शुरुआत से ब्रह्मांड के अंत, इसकी जो स्टेजेस है, जो प्रोसेसेस है, उसका खाली लिस्टिंग कर रहा हूँ। वेदांत और कन्वर्सेशन विद गॉड, उपनिषद और कन्वर्सेशन विद गॉड, दोनों यही कह रहे हैं जो मैंने अभी समझाया। और अभी 11th पॉइंट में कह रहा हूं कि एवरी पर्सन इज गारंटीड मोक्ष। ये मेरा स्टेटमेंट बहुत सारे साधुओं के स्टेटमेंट से ऑपोजिट है, ओके, मगर मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, क्योंकि उपनिषद भी ये कह रहे हैं और नील डोनाल्ड वॉल्स भी यही कह रहा है। एक अमेरिकन ऑथर आज की सेंचुरी में, और जो हजारों साल पहले हिंदू ऋषि मुनियों ने लिखा, जैन बौद्ध ऋषि मुनियों ने लिखा, बौद्ध शब्द मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं पूरा समझा नहीं हूं, मगर हिंदू और जैन धर्म में तो ये कहा है कि मोक्ष है। जब हम निश्चय नय में अद्वैत की भावना से बात करते हैं, तो every person is right now, and wherever he is Brahman. Okay. Now he has voluntarily
decided to cover himself meaning cover his intellect and mind by ignorance. तो अज्ञान उसने खुद लिया है, जो जैसे हमने पहले वो राजा की वार्ता की थी कि the king wanted to have experiences. As a king he could not experience, so he voluntarily gave up his royal clothes and royal things and all that, and he went around the city as a beggar, as a pauper or as an unknown stranger. तभी उसको सब अनुभव मिले. तो यही वार्ता जब ब्राह्मण बोलता है कि एको अहम बहुश्यामी, तभी उसने जो जीवात्मा होते हैं वो इग्नोरेंस धारण करते हैं, इग्नोरेंस धारण करके फिर संसार का अनुभव लेते हैं. वो संसार का जब अनुभव पूरा होगा, या तो जब भी आत्मा की इच्छा होगी कि नहीं चलो अभी मुझे घूमना नहीं है, मैं सब बंद कर देना चाहता हूँ, तो मोक्ष तत्क्षणम, फिर उसे मोक्ष मिल जाएगा. मगर वो कुछ रेयर लोगों के लिए है, बाकी सभी लोग उनका वापस जाने का रास्ता भी बताया हुआ है, क्योंकि किंग तो पागल नहीं था, वो पैलेस में उसे जाना था, वो पैलेस में कैसे जाएगा, तो उसके लिए भी पूरे नियम उसको बता के रखे हैं कि जब तू झूठ बोलना बंद करेगा, क्रोध करना बंद करेगा, माया के जो भी लक्षण है उससे तू स्वतंत्र हो जाएगा, जब तू साधुता की तरफ आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे तेरे वापस आने का रास्ता खुल जाएगा. और जितना वो तुमने सत्य और प्रेम का आचरण किया, उतने जल्दी ही तुम वापस चले जाओगे. तो मोक्ष इज गारंटीड का मतलब सबको मोक्ष मिलेगा, मगर ऐसे नहीं कि मैं आज खून किया, आज चोरी चपाटी की और कल मुझे मोक्ष मिल जाएगा. नहीं, हर एक इंसान को इच्छा होगी. आज उसको इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं. मैं किसी को कहा कि भैया तेरे को मोक्ष की भावना नहीं है, उसने बोला अरे छोड़ो यार, अभी तो मैं जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ, तुम मोक्ष की बात मत करो, साधुता की बात मत करो, मुझे ये करना है वो करना है. ठीक है, बराबर है. तो वो ये जन्म में 10 जन्म के बाद में कभी भी उससे इच्छा होगी कि नहीं, नाउ आई वांट टू गो बैक टू द पैलेस, आई वांट दिस, आई वांट दैट, फिर उसके दुष्कर्म बंद हो जाएंगे, सत्कर्म शुरू होंगे. जब सत्कर्मों से चित्त शुद्धि होगी तो आखिर में उसे मोक्ष मिलेगा. तो गारंटीड शब्द का भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग ये है. गारंटीड मतलब ये नहीं कि चलो मैं चोरी करते रहूं और मुझे मोक्ष मिल जाए. और फिर एक्सेप्शन भी है. एवरी रूल इज प्रूव्ड बाय द एक्सेप्शन. तो ये भी पहले बात की हुई है कि कृष्ण भगवान ने जब कंस को मार दिया, उसको खत्म कर दिया, ठीक है, तो कंस का उसी क्षण में मोक्ष हो गया. राम भगवान ने जब रावण को मारा, तो रावण को मारने के बाद रावण का मोक्ष हो गया. तो क्यों, वो कैसे? तो इसके लिए मैं यहाँ भी दिनकर जोशी ने मुझे जो शब्द कहे थे वो यूज कर रहा हूँ कि मोक्ष को आप पैलेस समझो. तो पैलेस जाने के लिए राजमार्ग भी है और गटर मार्ग भी है. राजमार्ग पर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद चले, हम उसको फॉलो करने का प्रयत्न कर रहे हैं. और कंस और रावण गटर मार्ग से गए. रास्ते तो सभी है, आप चूज करो आपके कौन से रास्ता जाना है, राजमार्ग से जाने का है या गंदे मार्ग से जाना है. मगर हर एक इंसान, हर एक जीव, इंसान क्यों, हर एक जीव को एक ना एक समय पे मोक्ष मिलेगा. और यही दिस इज द स्कीम, दिस इज द वे द होल प्रोसेस जो मैंने अब तक डिस्क्राइब की, दैट स्कीम वर्क्स. तो अगेन फ्रेंड्स, आई हैव डिस्कस्ड दिस व्यवहार नय निश्चय नय इन ए डिफरेंट कंटेक्स्ट. और एको हम बहुश्यामी से कल्पांत तक या तो इंडिविजुअल मोक्ष तक, ये प्रोसेस मैंने बात की. Now the same thing I have written in 3-4 different manners. I can go to the next one. उसके पहले again I am posing कि कोई चर्चा है, कोई विचार किसी को कहना है. रश्मिन भाई. हाँ जी तुषार भाई. नहीं, 2-3 चीज आपकी बात से पता चला. एक तो जो आपने बोला वो एकदम सही बात है कि अपने जो लिटरेचर है या साधु पुरुष है जिन्होंने भी लिखा है, तो चित्त मन वैसे अलग अलग शब्द इतने इंटरचेंजेबली उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि जब अलग अलग लिटरेचर. हाँ जी.
Sorry, Tushar bhai, पढ़ते we तो we can't get hear you. confused कि भी किसकी अच्छा okay अच्छा okay then you have to pardon me because I can't speak loudly. नहीं, loudly नहीं I will speak अभी. on some other. નહીં Sorry? મને છે ને મને હમણાં મોટેથી બોલવાની મનાઈ છે એટલા માટે નહીં, મારું એનો થોડું વાંધો બેસી નહીં, પણ તમારો અવાજ કમ્પ્લીટલી બંધ થઈ જાય છે. અચ્છા 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 કઈ નહીં હું પછી કોઈ વાર હું લખીને બોલીશ કઈ લખીને જણાવીશ આપણા ગ્રુપમાં ડોન્ટ વરી નો પ્રોબ્લેમ. Okay. Sir, your connection is getting cut. That is why we are not able to hear. Otherwise, your volume is fine. નહીં no problem. I will speak. I will write in our group and then we will convey. Don't worry, no problem. Okay. You can even write on your chat box, and then after some time I'll have a look at it. हाँ પછી that we will do it. We will do it. No, don't worry. I'll communicate. Okay. Any other person? Any other thought? Okay, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ. Sorry. मैंने मेरी जो नोट मैं शाम को भेजी उसमें एक पिक्चर दिया है. एक ग्लास क्रिस्टल है त्रिकोणाकार जो पिरामिड साइज का, पिरामिड साइज नहीं, पिरामिड शेप का. उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट या कोई भी लाइट उसके ऊपर गिरती है, तो वो लाइट जब क्रिस्टल से पसार होती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, और दूसरी तरफ से जब लाइट बाहर निकलती है तो 7 किरण हमें दिखते हैं. एक्चुअली रेनबो या इंडिगो जो बोलते हैं वो 7 किरण हमें दिखाई देते हैं. हकीकत में और भी बहुत ज्यादा कलर उसमें रहते हैं, मगर ह्यूमन आईज से हम खाली 7 देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश अपनी वेवलेंथ से घूमता है, वेवलेंथ से आगे चलता है, और कुछ वेवलेंथ जैसे अल्ट्रावायोलेट रेज है हमें दिखाई ही नहीं देते हैं. एक्सरेज है वो भी सनलाइट में होता है मगर हमें नहीं दिखाई देते हैं. तो जो 7 कलर हमें दिखे, तो एक ही किरण आ रहा है, सूर्य प्रकाश का एक ही किरण आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो गया तो उसके 7 कलर हो गए. ये मैं एक एनालॉजी ले रहा हूं कि ब्रह्मन का चित्त, वो चित्त में न कोई इच्छा है, न कामना है, न कोई संकल्प है, न विकल्प है, कुछ भी नहीं है. चित्त परमानेंट पीस में है. वो चित्त जब संसार में आता है, किसी भी प्राणी का मन बन जाता है, तभी मन में बहुत सारी कामनाएं रहती है, बहुत विषय इच्छा रहती है, संकल्प विकल्प रहते हैं, विचार आते ही रहते हैं. तो एक ही चित्त मन होने से एकदम स्प्रेड हो जाता है, और उसके बाद में वो अलग अलग इच्छाएं करते रहता है. जितनी इच्छाएं होती है उतना वो भागते रहता है. जब इच्छा पूरी होगी तभी ही इंसान को पीस मिलेगी, तभी उसके शांति मिलेगी, तब तक वो भागते ही रहेगा. अच्छा, हमने लाइट को ग्लास क्रिस्टल से पसार करके उसका रिफ्रैक्शन कर दिया, हमने 7 कलर देख लिए. वो 7 कलर को हम वापस एक कलर बना सकते हैं क्या? आप सोचो, आपने एक पिरामिड शेप के क्रिस्टल से लाइट को पसार किया, 7 किरण हो गए. या तो बारिश में सूर्य किरणें बारिश की बूंदों से पसार हुई और एक मेघ धनुष बन गया. वो मेघ धनुष को वापस सनलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट. यही एनालॉजी काम करती है मन में और चित्त में. चित्त शांत है, मन में सतत अनेक विचार आते रहते हैं, अनेक इच्छाएं उठती रहती है. वो इच्छा, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा होती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी इच्छा होती है, ये चलते ही रहता है. तो मन को वश में करना इतना ही डिफिकल्ट है, इतना ही कठिन है, जितना रिफ्रेक्टेड लाइट को वापस सनलाइट में कन्वर्ट करना. अगर हम रिवर्स रिफ्लेक्शन कर सके, अगर हम
मन को, सिर्फ मन का फंक्शन है संसार की तरफ इंसान को दौड़ाते रहने का। वो कंटिन्यूअस नई इच्छाएं करने का, नई भागदौड़ करने का, नया संकल्प करने का, वो चलते ही रहेगा। ये मन का फंक्शन है। अगर वो मन को हम कंट्रोल कर सके, उसको रिवर्सल कर सके, रिवर्सल मतलब भाई तू अभी आत्मा में खोज, अभी तू चर्चा करना बंद कर, लेक्चर देने का बंद कर, तू अपने आप में उतर जा, तो वो मन चित्त हो सकता है। वो मन का चित्त होना उतना ही मुश्किल है जितना रिफ्रैक्टेड लाइट को रिवर्स करना। फिर एक बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है, मैंने ये नोट में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा इसमें से डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा थर्ड पॉइंट है कि, और ये अभी हम मेन इश्यू पर आते हैं कि कर्म फल दाता कौन है, कर्म का फल हमें कैसे मिलता है। तो इसके ऊपर अलग अलग विचार है। हिंदू धर्म का विचार अलग है, जैन धर्म का विचार कंप्लीटली अलग है, वेदांत का विचार फिर और अलग है। तो मैं ये तीनों विचार, कर्मफल प्राप्ति या तो कर्मफल दाता, ये सब्जेक्ट के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म को मैं बहुत कम समझा हूं, मगर मैं जितना समझा हूं उसको समराइज करके यहाँ बता रहा हूं। जो हमने पतंजलि योग सूत्र जब चर्चा की तब ये चर्चा की थी, और जैन धर्म और पतंजलि योग सूत्र में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, तो इसके लिए ये अपने लिए आसान होता है। प्रकृति स्वतंत्र है, अलग है, जड़ है, ये जैन धर्म का विचार है। जड़ का मतलब उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो स्वतंत्र विचार शक्ति नहीं है। प्रकृति है, हमेशा के लिए है। अज मतलब अनबॉर्न, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो हमेशा थी। अमर मतलब वो कभी मरने वाली नहीं है, वो हमेशा रहेगी, शाश्वत है। ये प्रकृति है। प्रकृति और आप और मैं पुरुष है। ये पतंजलि योग सूत्र की भाषा है कि हम पुरुष हैं। उसमें तृप्ति बेन भी आ जाती है, मीना बेन भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पुरुष का मतलब है पर्सन। पुरुष मतलब मेल नहीं है, जो पतंजलि को वो मेल फीमेल के में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। और जैन धर्म में तो बहुत पहले से स्त्रियों की समानता स्वीकार की गई है, स्त्री और पुरुष समान है। दोनों के लिए यहाँ पुरुष शब्द यूज किया, एक आत्मा को पुरुष कहा। ठीक है। तो हर एक जीव स्वतंत्र है, हर एक जीव दूसरों से अलग है, कोई एक कॉमन तत्व नहीं है जो हिंदू धर्म में ब्रह्मन कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, और पूरी दुनिया में एक ही है, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता है। हर एक जीवात्मा की मुसाफरी जो है, उसकी जर्नी है, वो निगोद से शुरू होती है। निगोद इज नाइदर हेल नॉर हेवन नॉर मोक्ष। निगोद एक अलग ही कंसेप्ट है, वो खाली जैन धर्म में है और कहीं भी नहीं है। जैन धर्म के हिसाब से निगोद से आत्मा की मुसाफरी शुरू होती है, और आगे आगे जाके, एक ही सेकंड, I am reading Dharmen Bhai's statement on the chat. Your statement that every human will get moksha is an eye-opener. I was resigned to the fact that moksha is for people who have renounced all material things and taken sannyas like Jain sadhus. Is there any way to know that one is now entitled to free oneself from the cycle of birth and rebirth and is attaining moksha? Absolutely. Dharmen Bhai, you have raised a very pertinent point. कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष तो खाली साधु को ही होता है। अभी आई एम नॉट एन अथॉरिटी, आई एम मेकिंग ए स्टेटमेंट कि मोक्ष हर एक के लिए शक्य है, इवन जीव जंतु और पशु के लिए भी शक्य है। ओके, अभी ये आई एम सेइंग दिस ऑन द अथॉरिटी ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव रेड। ओके, जो हिंदू धर्म में, जैन धर्म में कुछ बंधन बोला है कि एक्चुअली कुछ साधु तो इतना भी बकवास करते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता है, जब स्त्री का अगले जन्म में पुरुष जन्म मिलेगा तभी उसे मोक्ष होगा। ये सब थियरी मैं रिजेक्ट करता हूँ।
हर एक जीव पूर्णतया स्वतंत्र है। जब वो जीव चाहेगा तब उसे मोक्ष मिलेगा। सवाल व्यक्त इच्छा का है। जब तक जीव को इच्छा है संसार भुगतने की, संसार के अलग अलग विषय, अलग अलग चीजों को उपभोग करने की, वो कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, जो भी है वो सबका उसके उपभोग करना है, तब तक वो संसार में रहेगा। अच्छा, दूसरी भी बात है, और मैं तो वेदांत में पूरा भरोसा रखता हूं, तो वेदांत में कहते हैं आप तो ब्राह्मण हो ही, और नील डोनाल्ड वॉल्स उसको इलाबोरेट करता है। आई वुड रिकमेंड टू एवरीबडी कि कन्वर्सेशन विद गॉड वॉल्यूम 1 मैंने ईमेल किया हुआ है सबको, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे से मांग लेवे, या तो इंटरनेट पर जाओ आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, इट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ चार्ज। और CWG सीरीज की बहुत सारी पुस्तकें इंटरनेट पर फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो इंटरनेट में इतने माहिर नहीं है तो मुझे कहो, मैंने डाउनलोड की हुई सब बुकें मैं आपको भेज दूंगा। मेरा कहना यह है कि वेदांत में एक एक उपनिषद 1 पन्ने का या 2 पन्ने का होता है, उसके ऊपर फिर 1000 पन्ने की कमेंट्री लिखी जाती है, तभी वो अपने को समझ में आता है। जबकि कन्वर्सेशन विद गॉड हम जिसको भी इंग्लिश आती है वो समझ सके ऐसी भाषा में लिखा है। ओके, तो CWG और वेदांत दोनों कहते हैं कि आप वॉलंटरीली अपनी इच्छा से ये अभी जो जीवन आप धारण किया है वो आप भुगत रहे हो। आगे भी जो होगा वो अपनी इच्छा से होने वाला है। ये प्योर निश्चय नहीं की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। आपने जो भी इच्छा की है वही सब हो रहा है। जैसे अपने में अपने एक मित्र है अतुल अंबावत, इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, जब उसकी उम्र करीब 1 साल की थी उनकी मदर का देहांत हो गया। ठीक है, अभी मैं और अतुल जी चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कि ये भी एक अनुभव है, अनाथ बच्चे की तरह से बड़ा होना वो भी एक अनुभव है, और वो अनुभव भी आपकी इच्छा से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पनिशमेंट है आप। अच्छा, अभी इच्छा के लिए CWG में 3 लेवल दिए हैं। जो हम जीव बोलते हैं उसे वो कॉन्शियस कहते हैं, फिर जो आत्मा है उसके वो सुपर कॉन्शियस बोलते हैं, और परमात्मा उसे वो सुप्रा कॉन्शियस बोलते हैं। ये तीनों आप ही हो। वो तीनों के 3 लेवल आपके ही लेवल्स हैं, मगर वो कौन से लेवल से आप सोच रहे हो। अभी इसका एक अगर एनालॉजी देना है तो एक छोटा सा बच्चा है, वो 10 साल की उम्र में क्या सोचेगा, तो चॉकलेट खाने की है, उसके खिलौने से खेलना है। वही बच्चा 24 साल की उम्र में क्या सोचेगा, वही बच्चा 50 साल की उम्र का होगा तभी क्या सोचेगा, तो सबका अंतर है। तो इसी तरह से कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रा कॉन्शियसनेस, वो तीनों जगह की सोचने की तरीके, सोचने की कॉम्पिटेंस अलग अलग है। मगर जब भी आपकी आत्मा, जिसे हम सुपर कॉन्शियस बोलते हैं, उसने जब चाहा मुझे मोक्ष चाहिए, बात खत्म। उसी क्षण उसे आगे कुछ नहीं करना है, उसी क्षण उसका मोक्ष है। ये निश्चय नहीं की बात हुई, मगर मैंने आगे भी कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है, और वो डेंजरस है इसके लिए ज्यादा साधु लोग ये बोलते ही नहीं है। डेंजर ये है कि लोग सोचने लगे अरे आई एम ओमनीपोटेंट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ब्लैक मनी करूं, मैं हवाला करूं, मैं खून करूं, मैं किसी का इंसल्ट करूं, फिर भी मैं जब चाहूं तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ समझना है कि हम जो रह रहे हैं, हमारी जो जिंदगी है वो व्यवहार नय में है। व्यवहार नय में हम जैसा ही कर्म करेंगे उसे हमें भुगतना है। सही किया गलत किया जो भी किया हमें भुगतना पड़ेगा। तो अभी ये निश्चय और व्यवहार का रिकंसिलिएशन करते हैं कि जब आत्मा चाहेगी कि अभी मुझे संसार आगे भुगतना नहीं है, तो वो आत्मा अपने आप दुष्कर्म करना छोड़ देगी। वो किसी से धिक्कार नहीं करेगी, वो सबसे प्रेम करेगी, और वो प्रेम के रास्ते पर चल के एक दिन उसका मोक्ष हो जाएगा। हमारे लिए 70 साल बहुत बड़ी लंबी लाइफ है। 100 साल तो मतलब कुछ बहुत रेयर लोगों को मिलती है, मगर वो हम बहुत लंबी लाइफ समझते हैं। एट द लेवल ऑफ सुपर कॉन्शियस वो छोटी सी चीज है। जैसे समुद्र में एक रिपल हुई,
एक मौज आई और मौज खत्म हो गई, तो वो उसको मौज को खत्म होने में 2 मिनट लगती है। तो सुपर कॉन्शियस लेवल की दृष्टि से हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है। तो सुपर कॉन्शियस जब चाहेगा तभी मोक्ष है। धर्मेंद्र भाई, रेस्ट एश्योर्ड, आई एम मेकिंग ए वेरी कॉन्शियस स्टेटमेंट दैट एवरी सोल इज एंटाइटल्ड टू मोक्ष। और वो जब आत्मा के लेवल पर जब चाहेगा उसे है, उसे ना साधु बनना है, ना पुरुष बनना है, ना कुछ बनना है, जो जैसे हालत में वो हालत में से वो मोक्ष पा सकता है। Okay, we come back to the Jain philosophy. जैन फिलोसॉफी में कहा है हर एक पुरुष आत्मा लेवल पे समान है। वो अभी रास्ते में चलने वाला कुत्ता है, आपके घर के अंदर घूमती हुई चींटी है, या तो बहुत बड़ा साधु है। आत्मा लेवल पे सभी समान है। वो अपनी मुसाफरी कर रहा है अपने कर्म के सिद्धांत पे। कर्म का, जैन धर्म में कर्म को बहुत प्रधान महत्व दिया है। कर्म की गति से इंसान या तो जीव आगे चलेगा, और न आप किसी को मदद कर सकते हो, न आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो। आप कैसे बिगाड़ोगे? आप भी पुरुष है, वो भी पुरुष है, दोनों सही पोटेंशियल वाले, समान पोटेंशियल वाले हैं। तो न कोई किसी की मदद कर सकता है, न कोई किसी का बिगाड़ सकता है। जो भी कुछ हो रहा है वो अपने अपने कर्म फल से हो रहा है। कर्म फल दाता ईश्वर नहीं है। न कोई देव है, न देवता है, न देवी है, कोई नहीं है। आपका कर्म जो भी आपने किया उसका फल आपको मिलना ही है, उसकी पूरी फॉर्मूला है। तो जब भी आपके क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, जब प्रारब्ध कर्म बनेंगे, उसमें बहुत बड़ा एक पूरा कॉबवेब है। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि प्रारब्ध कर्म कब होगा वो करना अपने लिए मुश्किल है। मगर वो जब भी प्रारब्ध होगा तब वो कर्म का फल मिलेगा आपको। उसके लिए ईश्वर के कंसेप्ट की ही जरूरत नहीं है। ईश्वर है, वो ईश्वर अपना काम कर रहा है। वो आपको, आप जैसे तो दुनिया में 8 अरब इंसान है, मगर हर एक जीव की बात करेंगे तो हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतना तो खाली पृथ्वी पर है। तो इतने बड़े यूनिवर्स में तो कितने जीव होंगे। ईश्वर वो सब करने में नहीं बैठा है। ऐसे ये जैन धर्म की मान्यता है। और बहुत ब्रीफली कहें तो जैन धर्म के ये 3 स्टेटमेंट जो श्रीमद राजचंद्र की बुक में लिखा है, मैंने पढ़ा है। आत्मा है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम बुद्धिस्ट धर्म की बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट की कितनी जरूरत है। क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। बुद्धिस्ट धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। जैन धर्म में कहते हैं आत्मा है, आत्मा करता है और आत्मा भोगता है। मेरी आत्मा है, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो मैं कर्म कर रहा हूँ, और उसका जो भी भुगतना है मुझे ही भुगतना है और कोई नहीं भुगतेगा। दिस इज द जैन फिलोसॉफी। अगर इसे हमें समझना है तो जैन धर्म को पतंजलि योग सूत्र या सांख्य योग से कंपैरिजन करो, बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। और दूसरा ये कि जैन धर्म प्योर ज्ञान मार्ग है, प्योर नॉलेज मार्ग। उसे नॉलेज के सिवा और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। जैन जो साधक है वो स्वर्ग की साधना नहीं करते हैं, वो एंजॉयमेंट की साधना नहीं कर सकते, उसे फक्त ज्ञान चाहिए। और जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। ये सिंपल थियरी है। तो ये ज्ञान मार्ग हमेशा के लिए कठिन रहा है। और ज्ञान मार्ग पे हिंदू धर्म में कितनी भी चर्चा की होगी, मगर ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हिंदू तो लाखों में एक ही होता है। तो इसी कारण जैन धर्म का एक्चुअल फॉलोअर, जो सही माने में फॉलो करते हैं, वो बहुत कम है। वो कम होना है, वो कुदरती सिद्धांत है। हिंदू धर्म भक्ति मार्ग है। ईश्वर है, मैं एक जीव हूं, ईश्वर मुझसे अलग अस्तित्व है। और यहाँ मैं बताता हूँ, जो गीता में पुरुषोत्तम योग 15वां चैप्टर है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है। कृष्ण भगवान कहते हैं जीव है, परमात्मा है या ईश्वर है, मगर मैं वो सबसे ऊपर हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। मतलब हर एक जीव पुरुष कहो तो मैं तो पुरुषोत्तम हूं। और अद्वैत की भावना गीता में नहीं है। पुरुषोत्तम योग का 15वां जो चैप्टर है
उसमें अद्वैत की भावना नहीं है। हाँ, तो अभी अपना दिमाग काम करने मुझे दोस्त लोग बोलते हैं, जैन लोग बोलते हैं कि ये तो गीता में खाली भक्ति की बातें हैं। वो भी बराबर नहीं है। गीता में उपनिषदों में से अच्छे अच्छे श्लोक दिए हुए हैं, मगर जब गीता का अंत आता है तब वो कृष्ण भगवान 10 बार कहते हैं कि तू मेरी भक्ति कर, तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग है हिंदू मार्ग। अब ये समझ लो कि भक्ति बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बहुत रेयर लोग हैं जिसे भक्ति अच्छी नहीं लगती है। जैन धर्म में भी भक्ति करने वाले तो बहुत है, क्योंकि कुदरती है कि हम हमारे से किसी एक ज्यादा शक्ति वाले अस्तित्व का विचार करते हैं, फिर उसे हम उसकी भक्ति करते हैं। हिंदू धर्म वेदांत से भक्ति में बहुत अलग पड़ जाता है। हिंदू धर्म भी द्वैत की भावना कर रहे हैं जो जैन धर्म में है, मगर हिंदू द्वैत की भावना ये है कि मैं जीव हूँ, ईश्वर मुझसे बड़ा है और ईश्वर मुझसे अलग है। जब मुझे मोक्ष मिलेगा तब मेरा ईश्वर के अस्तित्व में विलीनीकरण हो जाएगा, मैं उसमें मर्ज हो जाऊंगा। आज मैं वो नहीं हूँ। सॉरी, पंकज भाई has written a comment. Thank you, पंकज भाई। हिंदू धर्म में ब्रह्मन है, उसके बाद में क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ब्रह्मा बोला है। ब्रह्मा की पैरेलल शक्ति है, उसकी ब्रह्मा की शक्ति है सरस्वती। नरिशर ऑफ द वर्ल्ड इज विष्णु, विष्णु के साथ लक्ष्मी है। डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड शिवा इज शिवा, और शिवा के साथ पार्वती है। ये हिंदू धर्म की कल्पनाएं हैं। और विष्णु जो दुनिया को चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, वो कर्म फल दाता है। मैं कुछ भी कर्म करूं, मुझे वो कर्म का फल कभी मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो भगवान विष्णु डिसाइड करेंगे। विष्णु मतलब कृष्ण बोलो, राम बोलो, जो भी बोलो, विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। अगर गीता में लिखा है तो कृष्ण बोलेंगे कि मैं कह रहा हूँ। रामायण पढ़ोगे तो वैसे रामायण में तो ऐसे राम भगवान किधर बोलते नहीं कि मेरी भक्ति करो, मगर हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसके हिसाब से ईश्वर फल दाता है, और वो फल मुझे अच्छा चाहिए। मैं बुरे कर्म करूं तो भी मुझे फल तो अच्छा ही चाहिए, और अच्छे कर्म करूं तो बहुत अच्छा फल चाहिए। ये मान्यता के कारण स्वार्थ से, लोभ से लोग और भी ज्यादा भक्ति करते हैं। जो सिर्फ प्रेम से भक्ति करते हैं, जो हिंदू ईश्वर को प्रेम करते हैं, जैसे मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम, कबीर, बहुत संत हो गए। ये संत जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं, वो एक ऊंची तरह का प्रेम है। ये सामान्य लोग जो है वो भक्ति स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। हिंदू धर्म से सनातन धर्म या वेदांत धर्म बहुत अलग है। वेदांत के हिसाब से आप अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का दूसरा अर्थ चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ स्थूल शब्दों में ऊर्जा है या तो एनर्जी है, मगर पूरे समस्त ब्रह्मांडों में एक ही चैतन्य है। वो एक चैतन्य आप अभी हो। तो आपका जो भी कुछ हो रहा है वो आपको तो न कर्म का सिद्धांत बांध सकता है, न कोई बांध सकता है। आप खुद ईश्वर हो, आपको कौन बांधेगा। आप अभी जो भी कर रहे हो अपनी इच्छा से कर रहे हो, कल करोगे अपनी इच्छा से कर रहे होगे, तो आपके कर्म, आपका कर्म फल आप खुद ही नक्की कर रहे हो। ये है वेदांत धर्म। फ्रेंड्स, वी आर एट 6:52. I have explained the same issue in 2-3 different manners. मैं खाली यहाँ एक कबीर का दोहा लेता हूँ, जो क्योंकि ये संतों की एक बहुत बड़ी खूबी रही है कि जो मैं 1 घंटे में कहूँगा, 1.5 घंटे में कहूँगा, वो खाली 2 लाइन में कह देते हैं। ये शबनम वीरमणि ने बहुत अच्छी तरह से कबीर के भजन गाए हुए हैं। इसकी लिंक मैंने भेजी है, वो थी आगे। आज मैं फिर से भेजूंगा, क्योंकि जो दूसरे मित्र लोग अभी अभी ज्वाइन हुए उन्होंने शायद पता नहीं सुना होगा। तो
तो कबीर का दोहा है, सकल हंस में राम बिराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। इसका हंस मतलब आत्मा, संस्कृत में जीव या आत्मा के लिए हंस शब्द भी यूज किया है। तो सकल हंस में राम बिराजे मतलब हर एक जीव में राम भगवान है। राम बिना कोई धाम नहीं, धाम मतलब जगह नहीं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां राम नहीं है। यही ईशोपनिषद का श्लोक है, ईशावास्यम सर्वम इदम। फिर कबीर जी आगे बताते हैं कि 4 राम है। एक तो दशरथ पुत्र राम, जिसके ऊपर रामायण लिखी गई, जो सबने पढ़ी। दूसरे राम वो है कि जो हर एक जीव के हृदय में विराजते हैं। तीसरे राम है जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और चौथा राम ऐसा है जिसे ना कोई समझ सकता है, जो ना कोई समझा सकता है। उसे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मांडुक्य उपनिषद में भी यही कह दिया है कि वो तुरीय है। तुरीय मतलब उसे आप न समझ सकते हो, और जिसने समझ लिया वो समझा नहीं सकेगा। ये तो 4 राम है। अब सोचो, एक ही व्यक्ति दशरथ पुत्र राम एक ही समय में 4 हस्ती है। जब वो दशरथ पुत्र है, दशरथ राजा की भक्ति करते हैं, कौशल्या माता को प्रेम करते हैं, सीता जी को प्रेम करते हैं, तब वो मनुष्य अवतार है। उसी समय वो राम भगवान सबके हृदय में बसे हुए हैं, उसी समय पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अभी हम जब रामायण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार रामायण तो राम भगवान ने गलत काम किया। वो सीता को वनवास में क्यों भेजा? तो उन्होंने तो कोई, सीता जी ने तो कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने क्यों भेजा? वो शंबुक एक ट्राइबल था, आदिवासी था, वो तपस्या कर रहा था, तो राम भगवान जाके उसको तीर मार के मार दिया। भाई क्यों? इसी तरह से राम के ऊपर 2 आक्षेप लग सकते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया, उन्होंने आदिवासी से अन्याय किया। तो कृष्ण भगवान के ऊपर तो बहुत आक्षेप लग सकते हैं। हमें ये सोचना है कि ये मनुष्य अवतार है, और वो मनुष्य अवतार को कुछ साधुओं ने उसके ऊपर लिखा हुआ है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखे, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी, श्रीमद् भागवत भी वेद व्यास जी ने लिखा। अब उन्होंने वो समय पे जो सोचा होगा ऐसे उन्होंने लिखा है। मगर जो हम ईश्वर की बात करते हैं, जो सुप्रा कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो सुप्रा कॉन्शियस कभी भी कोई भी अन्याय नहीं करता है, न किसी के ऊपर जजमेंट करता है, न किसी को सजा करता है। ये कबीर जी का जो दोहा है, उसमें एक चीज जो हम व्यवहार और निश्चय नहीं की बात करते हैं, उन्होंने ये 2 शब्द यूज करे बगैर ही ये समझाया हुआ है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल स्टॉप टुडे डिस्कशन। मैंने जो नोट आपको ईमेल किया है, अभी अगर आप पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। नाउ आई एम ओपन फॉर कमेंट्स, डिस्कशन, क्वेरीज। જશમીનભાઈ એક સવાલ છે हाँ जी। કે જે જૈન ધર્મ માટે આપ બોલ્યા તો એમાં એનિહિલેશન ઓફ બોડી ને એ પ્રિન્સિપલ ક્યાં જોઈન થાય છે? સી દરેક લોકો તપ કરીને પોતાનું શરીર ગાળતા હોય છે ને, આપણામાં તો સંથારાનો બી એક કન્સેપ્ટ છે, કરેક્ટ એ કરેક્ટ ક્યાં કઈ રીતે આમાં બેસે છે એ નહીં સમજ પડી મને. દરેક ધર્મમાં બહુ અપભ્રંશ થાય છે, દરેક ધર્મમાં ભ્રષ્ટાચાર ઘૂસી જાય છે, અને દરેક ધર્મમાં અંધશ્રદ્ધા અને ખોટી માન્યતાઓ ઘૂસે છે. આઈ એમ સોરી, હા, હું બહુ જ બોલ્ડ અને બહુ રેડિકલ સ્ટેટમેન્ટ કરી રહ્યો છું, પણ એના ઉપર એ પણ હું ઓથોરિટીથી ના સપોર્ટથી કહું છું કે પોતાની જાતનું દમન કરવાથી કોઈને કાંઈ નથી મળવાનું. તમે એક ઉપવાસ કરો, તમારી તંદુરસ્તી માટે સારું છે. તમે એક દિવસ મૌન રાખો, તમારી मानसिक तंदुरुस्ती માટે સારું છે. પણ 10 उपवास करने का, पूरे साल उपवास और एकासना करने का और शरीर को खत्म करना, ये सब गलत है। बुद्ध धर्म में, सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म श्रमण धर्म से, मतलब पतंजलि जी के, अभी एक मेरा थोड़ा जोड़ देना है, मगर पतंजलि योग सूत्र
महावीर भगवान से पहले लिखा गया है। तो हम्म, हाँ, ये दोनों ने वो उसमें से लिए है। अगर आप बुद्ध भगवान के पिक्चर्स देखोगे या आपने जो बोरीवली गोराई में जो है उधर जाओगे तो बुद्ध भगवान का ऐसा चित्र दिखेगा कि वो पूरा शरीर गल गया है, शरीर में न मसल है न चर्बी है, कुछ भी नहीं है, खाली एक हाड़ पिंजर है, उसके ऊपर चमड़ी है। ऐसा ही चित्र शायद आपने श्रीमद राजचंद्र का भी देखा होगा। तो हम्म, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि उपवास करके अपने शरीर का नाश कर दो। मैं उसमें नहीं मानता हूँ। मैं ये स्पष्ट मानता हूँ कि जानबूझकर अपने शरीर पर या किसी के शरीर पर कोई भी जुल्म करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप प्रेम करो, आप खुद आनंद से रहो, दूसरों को भी आनंद का कारण बनो। ये मेरे हिसाब से सही गृहस्थाश्रम। બરોબર. ચલો, સારું એક આ વસ્તુ સમજાવી. થેન્ક યુ રશ્મિ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. જીવાત્મા સંચિત કર્મ લઈને બોડી છોડે, બરાબર છે? હા, બરાબર. અને એ જે કર્મના જે ફળ છે એને કોઈને કોઈ જીવન એટલે કોઈ પણ વખતે ભોગવવાના છે. બરાબર. હવે એને તો સ્મૃતિ છે જ નહીં કે આને પાપ કર્યું હતું આગલા જન્મમાં કે પુણ્ય કર્યું હતું. આ તો એવી વાત થઈ ગઈ કે આપણે ઘેર આવીને બાપુ એક લાફો ઠોકી દે અને પછી આપણે પૂછે ભાઈ મેં શું ગુનો કર્યો હતો? અરે કે તું નાનો હતો ત્યારે તે ગુનો કર્યો હતો. અરે પણ ભાઈ હવે ખબર તો છે જ નહીં. તો જીવાત્માને સ્મૃતિ જો હોય કે ભાઈ આ પાપ ને આ પુણ્યનું ફળ હું ભોગવી રહ્યો છું તો કંઈક મતલબ હી કેન બી અ બેટર પર્સન એવું મને લાગે છે. અને એના પર તમારો શું વિચાર છે કે શા માટે એ સ્મૃતિ નથી આપી? ઓકે, આમાં થોડો ટાઈમ લાગશે. ઇટ્સ ઓકે. અરે હા, આપણને ચાલશે, ચાલશે. તમને વાંધો ન હોય તમને વાંધો નથી. थैंक यू. सी, मैं तो वेदांत पर जा रहा हूँ फिर से, क्योंकि मुझे उसमें आस्था है. दिनकर जोशी इज ब्रह्मन, तत् त्वम असि. ओके, ये महावाक्य आपने 1000 बार सुना है, फिर भी आप उसमें मानते नहीं हो. और एक्चुअली ये दिनकर के साथ बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब मैं दिनकर के साथ बात कर रहा था ये सब वेदांत की, तो उसने बोला यार छोड़ रश्मिन, जब मेरे दांत में दर्द होता है ना तो ब्राह्मण भी भूल जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ. दिनकर हैज ए वे ऑफ मेकिंग ए वेरी रेडिकल हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट. तो मगर इसका ये जवाब है साहब कि वेदांत ने ये कहा है कि ब्रह्मन ने कहा एको अहम बहुश्यामी. तो ब्रह्मन ने एक रूप लिया रश्मिन का, दूसरा रूप लिया दिनकर का, और हम अभी समझो 15-16 लोग साथ में बैठे हैं. ये ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है. ये ब्रह्म ब्रह्म से वार्तालाप कर रहा है. और दिनकर जोशी भूल गया कि मैं तो ओमनीपोटेंट हूँ, ओमनीसाइंट हूँ. इसी तरह से रश्मिन संघवी भी भूल गए कि मैं ओमनीसाइंट हूँ और इतनी सारी पुस्तकें पढ़ रहा है, इतना सारा प्रयत्न कर रहा है. इसी तरह से जब एक जीवात्मा ने जो भी कर्म संचित किए, वो बहुत सारे कर्म तो वो इसी जन्म में भूल जाते, दूसरी जन्म की कहाँ बात कर रहे हो. और शायद वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर उसने बचपन से लेके आज तक जितना गुनाह किया तो वो जिंदा नहीं रह सकेगा, वो सब याद रहेगा. तो ये पूरी व्यवस्था ऐसी है कि जब इंसान का मृत्यु होगा, वो दूसरा जन्म लेगा, तो फिर से उसे अपने नए अनुभव इकट्ठा करना है. वो ये पूरी जीवन की यात्रा ही की है अनुभवों के लिए. वो अनुभव करने में अगर आगे का याद रहा तो अनुभव में मजा नहीं आएगी. वो अगर राजा नहीं भूलेगा कि मैं राजा हूं तो उसको अनुभव क्या मिलेगा. तो आपने पिछले जन्म में क्या किया है सब कुछ भूल गए, अभी ये नया खाता खोला, नया खाता खोला, आप नए अकाउंट्स कर रहे हो, नए कुछ जो भी अनुभव लोगे इकट्ठा होएगा, ये भी इकट्ठा होगा, आगे का भी इकट्ठा होगा. मगर सुपर कॉन्शियस कुछ भी नहीं भूल रहा है. जो कर्म का सिद्धांत के ऊपर जिन्होंने भी लिखा है वो बोलते हैं, उनका इलस्ट्रेशन कैसा है कि समझो ये पुराने जमाने की बात है कि एक काउहर्ड 1000 गाय को लेके जंगल में गया, शाम को वापस आया, तो वो हर एक गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा, वो दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा. वो 1000 गाय में किस तरह से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढता है,
इसी तरह से आपका कर्म आपको ढूंढ लेगा और जब आपका प्रारब्ध होगा तभी आपको कर्म फल मिलेगा। ये भक्ति मार्ग की मान्यता है। वेदांत की मान्यता जो मैं समझा हूं कि आप तो नक्की किया कि अभी बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन के रूल्स फॉलो करना है, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के रूल्स फॉलो करना है। ऐसे कर्म का प्रिंसिपल एक गेम का रूल है। आप जब तक गेम खेलना चाहते हो तो आप वो रूल के हिसाब से करोगे काम। जब आपको गेम नहीं खेलनी है तो रूल का है का, आप एक बाजू बैठ गए, अभी दर्शक बन गए, अभी आप प्लेयर नहीं है तो आपको कोई रूल नहीं है। आपको सभी कुछ पता है। आपने इसी जन्म का नहीं, आपने 100 जन्म की वार्ता सोच ली है कि मुझे इस तरह से खेलना है, तो एक के बाद एक खेल रहे हो और उसमें किसी को इनजस्टिस नहीं लगे इसके लिए एक स्टोरी बुक भी आ गई कि कर्म का सिद्धांत है। आई डोंट नो वेदर आई हैव एक्सप्लेन्ड, बट आई एम अगेन रिपीटिंग इन डिफरेंट वर्ड्स कि आपने कर्म किए, वो आप मतलब जीव भूल जाता है, मगर वो संचित कर्म, वो संस्कार, वो मन और आपने जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर किया हुआ है वो सब नेक्स्ट जन्म में साथ में आता है। कुछ भी भूला नहीं जाता है। कौन नहीं भूलता है? सुपर कॉन्शियस नहीं भूलता है, सुप्रा कॉन्शियस नहीं भूलता है। जीव सब कुछ भूल जाता है। हर जन्म में नया चैप्टर शुरू। हेलो, ओके। सॉरी दिनकर, इज इट क्लियर? नहीं भाई, देखिए इसमें तो है ना, इतना क्लियर नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया तो फिर और कुछ सोचने का नहीं रहता है। तो एक शायर ने 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। हाँ। वो बोलता है कि क्यों गुनाह किया नहीं तूने, क्यों गुनाह किया नहीं तूने, क्या तुझे मालूम नहीं खुदा कितना रहमदिल है। बराबर से। मतलब खुदा की रहमदिली में से क्या विश्वास उठ गया क्या? नहीं, लेकिन वो अलग टॉपिक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लक्ष्मण भाई, थैंक यू। थैंक यू। बट थैंक सर यू फ्रेंड्स। वो जो हाँ जी। दिनकर भाई ने कहा हाँ। ना कि खुदा की रहमदिली, मैं ऐसा हाँ। मानता हूँ कि खुदा की रहमदिली ये है कि वो हमारी मेमोरी में वो सब चीजें याद नहीं रखता हमारे को, सो दैट जो भी हमारा नेक्स्ट बर्थ, जो भी चीज हम नई स्लेट के साथ हम शुरू करते हैं, चिप पे जरूर हाँ। संस्कार पड़े रहते हैं, या, लेकिन ये सब बातें नहीं रहती हैं। सो वी हैव एंथुजियाज्म एंड एवरीथिंग न्यू एंड फ्रेश। वो भी अगर एक ये सब रहमदिली है। चीजें, या, हाँ, अगर ये सब चीज याद रहेगी तो कैसे होगी सर। और दिनकर भाई इसका छोटा सा एग्जांपल है, हम रोज 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं, उनमें कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव, सब तरीके के थॉट्स आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि सब अच्छे थॉट्स आते हैं। आप कल्पना कीजिए, हमें खाली एक दिन के थॉट्स अगले दिन याद रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते सर उसके अंदर बिल्कुल। तो ये भगवान की कोई स्कीम है सर, ये कोई नहीं, जिसको यस यस, विस्मृति एक बड़ा 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 वरदान है, कोई सवाल ही वरदान नहीं है। है, कोई सवाल ही नहीं है, बराबर। अच्छा, लेकिन ये तो भाई गुरु जी से मेरी एक ज्ञान प्राप्त कर रिक्वेस्ट रहे हैं। है, हाँ, नेक्स्ट मंथ में क्या सब्जेक्ट डिस्कस करना है जरा आपके सुझाव भेजिए, और कौन सा सैटरडे कन्वीनियंट है वो भी जरा ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजिए। कोई भी नया सब्जेक्ट सोचिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो भी मुझे पता था मैंने सब कुछ बोल दिया, अभी क्या है, बाकी नहीं है कुछ। सर और आ जाएगा, नया नया आ जाएगा आपके अरे चलो, हम सोच के आपको बताएंगे आपको क्या बोलना, लेकिन आपको बोलना जरूर है। ઘણું બધું જાણવું છે લક્ષ્મણભાઈ તમારી sir. પાસેથી, ઘણું બધું જાણવું છે, એટલે ચોક્કસ કોઈ બી ટોપિક ઉપર આપ જરૂર બોલો. ओके सर, ओके, थैंक यू, गुड Many नाइट, thanks, sir. Many thanks, sir. बाय। Let me do, sir.